guys, how are you all? कैसे हैं आप सब? What's up guys? This is Seema Priya. I'm your science educator. So how are you all? कैसे हैं आप सब? So let's start the session guys. Today we are going to learn about very interesting things like motion and time guys. Today we are going to do a very interesting chapter that is motion and time. So are you ready guys? Chalo, let's go and learn something new with Seema ma'am. So are you guys ready? So let's start with my introduction. My name is Seema Priya. I have done my master's in physics. I'm having 4 years of teaching experience. I taught around 4,000 students from class 6 to 10th in CBSE school. I have done my B.Ed and also qualified CTET. Okay, guys. So, a warm welcome to this crack CBSE Class 7 with India's largest learning platform. Let's start with some subscriptions, guys. So let's start with iconic subscription. Here you are getting, guys, personal mentor. It means one-to-one guidance from top experts as your personal mentor. You can resolve your concerns as well, guys. Here your parents can also connect, guys. They can also get your feedback. कैसी performance चल रही है आप सबकी? They can ask, guys. वो पूछ सकते हैं आपके mentors से, आपके educators से. Here you are getting live doubt solutions, guys. If you are paying for यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. इफ यू स्टक समवेयर देन गाइस लाइव डाउट सॉल्यूशन में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ. In plus subscription, guys, here you are getting daily live classes. You can chat with your educator, you can engage in discussions, guys. You can ask your doubts, everything you can do here. Your next is structured courses, guys. So your courses and your syllabus are made by your educator according to your exam point of view. Here you are getting live tests and quizzes, guys, where you can analyze yourself, where you can evaluate yourself, guys. And here we're getting unlimited access. You have to pay for only one. Rest are free. If you are taking any one subscription, then rest are free, guys. You have to pay for only one. बाकी सारे subjects आपको free में मिलेंगे. If you miss any class, guys, then you can watch that recorded session again and again. So who are going to conduct your live classes? Top educators, guys. If we talk about comprehensive syllabus, guys, then in science there are 6 courses, one upcoming. In maths there are 4 courses available. In English there are 3 courses. I think something went wrong here. Look at here. If we talk about an academy learning app, then what you all have to do next? सिंपल आपको एक ही चीज करना है. जस्ट गो टू प्ले स्टोर, जल्दी अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए and come and join this Unacademy. You will feel the same, guys. आपको उतना ही मजा आने वाला है यहाँ पे. Next is, guys, Telegram. Why Telegram is important, guys? Why Telegram is important? Telegram is important, guys, because आप यहाँ पे here you are getting all kind of notification and informations. कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी लाइव क्लास होने वाली है, क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा. So really it's going to be very interesting. Now, if we talk about subscription, guys, then this much you have to pay, guys. This much you have to pay. And if you will use my code SEEMA10, then you will get 10% extra discount here. That's great. That's great, guys. Again, guys. So, are you ready, guys? Are you ready for the chapter? क्या आप chapter के लिए तैयार है? So, guys, let me start with the concept. What do you mean by motion, guys? What do you mean by motion? What she's doing? What this lady is doing, guys? क्या कर रही है? Okay, she is moving her hands. वो अपने hand को move कर रही है. She is moving her hands.
This is actually motion, guys. Motion means movement. अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, दैट इज एक्चुअली, it means that your body is in motion. Is this clear, guys? Okay, so let's start with the introduction part here. An object is said to be in motion if it changes its position with respect to time. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन क्या है. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ, दैट इज नोन एज मोशन, गाइस. इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, सो माय हैंड्स जो है, माय हैंड्स आर मूविंग. यहाँ पे मेरे हैंड का पोजीशन चेंज हो रहा है, गाइस. एंड वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार मूविंग ऑन अ रोड. Okay, that is also an example of motion. Look at here, guys. क्या है ये? Look at here, look at here, look at here. This is actually a motion. Cycling भी क्या है? If you are doing this, it means आप क्या कर रहे हो? What you are doing, guys? आप motion में हो. Your body is in motion. If you are cycling, guys, you're cycling, then your body is in motion. So ये आपको क्या शो कर रहा है कि अभी आपकी बॉडी जो है मोशन में है. ठीक है, आपकी बॉडी अभी मोशन में है. Is this clear to all of you? Is this clear? Okay, hi. First of all, guys, hello. Hi, how are you guys? Hello, my study fighters. कैसे हैं आप सब? And guys, very important thing I want to discuss with you that today I'm taking the premier class because आज क्रिसमस है और आप सबको भी सेलिब्रेट करना चाहिए. कुछ ओकेजन जो होता है पूरे ईयर का, वो हर किसी को मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए. दैट्स वाई थोड़ा बहुत ब्रेक लेना जरूरी बनता है. थोड़ा ब्रेक तो बनता है, गाइस. सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस प्रीमियर क्लास. So but if you have any doubt, guys, you can tell me in this chat box. I'm here with you, all of you guys. मैं आप सबके साथ हूँ यहाँ पे. If you have any doubt, you can ask in here in chat box, guys. Okay, now next is when we say any object is at rest. हो, ये तो रेस्ट कर रहा है. क्या बात है. मुझे भी नींद आ रही है. लाइक दैट. नो गाइस, डेफिनेटली एंड बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट if the object doesn't change its position with time, guys. अगर वो पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ, दैट इज एज एन एग्जाम्पल दैट वी कॉल any object is at rest. Okay, guys, a person standing on a ground, that is also an example of rest position. Look at here, guys. What we say about this. Okay, ये तो ड्रैगन है. तो इस ड्रैगन के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? ठीक है, you have to tell me what we can say about this dragon. बच्चा, इस ड्रैगन के बारे में हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है बच्चा. ऑब्वियसली ये रेस्ट पे है. ओके, देखो कोई मूवमेंट नहीं हो रही है बॉडी में. ठीक है, बॉडी बिल्कुल फुल रेस्ट पे है. ओके, सो ये आपका रेस्ट है. वी टॉक अबाउट ये क्या है, क्या कर रहे हैं ये. ठीक है, दे आर ऑल्सो एट रेस्ट. कोई मूवमेंट नहीं हो रही है. सो इन सभी पोजीशंस को, गाइस, रेस्ट पोजीशन कहा जाता है, जहां पे आपकी बॉडी या आप मूव नहीं कर रहे हो. जहां आप मूव नहीं कर रहे होंगे, दैट एक्चुअली कॉल्ड एज रेस्ट पोजीशन. इज दिस क्लियर, गाइस? सो मोशन मीन्स अगर बॉडी में मूवमेंट हो रही है, और रेस्ट मतलब बॉडी में अगर मूवमेंट नहीं हो रही है. इज दिस क्लियर, गाइस? नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. what do you mean by distance, guys? What do you mean by distance? So distance means, guys, distance is the total path covered by the object. किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो पूरा एक पाथ ट्रैवल किया जाता है, that is known as distance. And displacement is the shortest path between the initial and final position. Is this clear? So distance is actually a speed into time. Distance क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, गाइस?
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? यूनिट जो है वो आपका मीटर और किलोमीटर। इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? Okay, okay. Now look at here. I am just explaining it. Just wait and just try to understand and try to clear this concept in your mind. Then that what's the difference? What's the main difference between distance and displacement, guys? Distance and displacement का मतलब होता है, just wait. Okay, look at here, guys. You are standing here. Okay, you are standing here. ठीक है, आप यहां से यहां तक गए। ठीक है, नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टेंस क्या है, तो आपका डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस अगर आपका 5 किलोमीटर है तो डिस्टेंस वही होगा। डिस्टेंस मतलब टोटल कितना पाथ, द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, that is called as distance. Is this clear? Now if we talk about the displacement, guys, so in this case displacement भी distance जितना ही होगा, क्योंकि वो उस पार्ट, वो कहीं और नहीं गया, वो यहां से यहां तक आया है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइस? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी, तो वो आपका डिस्टेंस जितना ही है। इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अगर सपोज कीजिए इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर गोइंग हियर एंड अगेन यू आर कमिंग बैक हियर, अब यहाँ पे जाके वापस उसी पोजीशन पे आ गए। इन दिस केस गाइस आपका डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक 5, और 5 प्लस वापस आने का 5 10 होगा। बट इन दिस केस गाइस आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि जहां से शुरू किया आप वहीं पे वापस आ गए हो। डिस्प्लेसमेंट होता है जहां आप शुरुआत में थे और जहां आप आखिरी में हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। इज दिस क्लियर? उसके बीच में आप कहाँ कहाँ गए कुछ नहीं पता। लुक एट, आप यहां से आपने शुरू किया, आप यहाँ गए, मार्केट में गए, मार्केट से अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड से आप फिर एक मैरिज में गए, मैरिज से फिर आप वापस मॉल घूमने गए, मॉल से फिर मूवी थिएटर गए, मूवी थिएटर से आप वापस यहाँ पे आ गए हो। अब अगर मैं आपसे बोलूंगी डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस गाइस जितना भी टोटल आपने पाथ कवर किया है उन सबको ऐड कर दोगे तो यू विल गेट द डिस्टेंस। बट गाइस अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा तो आपने कितना बीच में ट्रैवल किया, इट डजेंट मैटर। आप लास्ट में कहाँ थे और स्टार्टिंग में कहाँ थे, उनके बीच की दूरी जब आप मेजर करोगे, दैट इज एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर गाइस? लुक एट हियर, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज द पॉइंट। ओके, यहां से ये एक ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये ई है, ठीक है, ये है, सपोज कीजिए। ठीक है, नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, दिस इज योर 2 सेंटीमीटर, दिस इज योर 2 सेंटीमीटर, दिस इज योर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर था आपका, ठीक है, और ये आपका मान लो 6 सेंटीमीटर सपोज करो। सो इन दिस केस अगर आपको फाइंड आउट करना हो, कि कोई भी बोले कि चलो फाइंड आउट करो डिस्टेंस, तो अगर यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना होगा गाइस, इन दिस केस अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 2 + 4 + 4 + 6 + 2, सो टोटल आपका हो गया 18 सेंटीमीटर। सो 18 सेंटीमीटर जो है आपका टोटल यहाँ पे डिस्टेंस हो गया। इज दिस क्लियर? बट गाइस अगर आपको यहीं पे पूछा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका होता है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, जहां पे आप शुरुआत में थे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट का मतलब होता है जहां आप शुरुआत में थे, एंड दिस इज योर एंड पॉइंट। ठीक है, ये आप आखिर में जहां पे थे, एंड पॉइंट। तो आपका गाइस इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी थी, आप उसके बीच में कहाँ गए उससे कोई मतलब नहीं है। आप शुरुआत में कहाँ थे और उसके बाद आप गाइस लास्ट में कहाँ पे आए, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6। यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे गाइस, सो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा 6 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? क्योंकि इनिशियल और फाइनल की पोजीशन, इसलिए कहा जाता है दैट्स वाई गाइस ये कहा जाता है कि अगर आप एक सर्कल में घूम रहे हैं और आपने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहीं खत्म किया है, तो इस केस में गाइस आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 हो जाएगा, 0।
ठीक है, क्योंकि एक सर्कल में जहां से शुरू किया आपने वहीं खत्म किया, सो इन दैट्स व्हाई इन दिस केस आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा. इज दिस क्लियर टिल हियर? हैव यू अंडरस्टूड? ओके ओके गाइस, सो लुक एट हियर गाइस, अगेन अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस हियर. आसानी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो आप. डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी ए, मतलब 4 + 3 + 5, 12. सो 12 मीटर जो हो गया आपका टोटल डिस्टेंस हो गया. बट गाइज, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे तो उस डिस्प्लेसमेंट आपका सिर्फ एसी होगा, दैट इज 5 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर? अब आप पूछोगे वाई मैम? बिकॉज गाइज वो स्टार्टिंग में ए पे था और वो लास्ट में कहाँ गया? लास्ट में वो सी पे आया, यहां से यहां गया और लास्ट में वो सी पे आया, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर. गाइस बट अगर वो वापस एक चक्कर लगा के वापस ए पे ही चला जाए, तब उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट, वेट वेट, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट गाइस जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जहां से शुरू किया वो वहीं पे आके खत्म हुआ. ठीक है, बट अगर वो यहाँ ए से गया सी तक तो ए सी आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट मींस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी थी वो आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है. इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? थैंक यू सो मच. ओके नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट्स एंड देयर स्टैंडर्डाइजेशन. तो अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे गाइस, सो अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर करने की वो होती है सेकेंड गाइस. ओके, अगर हम स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट देखते हैं तो वो आपकी होती है मीटर पर सेकेंड. इज दिस क्लियर गाइस? टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? टिल हियर हैव यू अंडरस्टूड? ओके ओके ओके, सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल गाइस. कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं. अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, द डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अगर आप सबको ये फॉर्मूला लर्न है तो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाना है आपको. ओके, एक न्यूमेरिकल करना है. तो उस न्यूमेरिकल में से ओके, डिस्टेंस हम ले लेते हैं. ओके, डिस्टेंस ले लेते हैं आपका 20 किलोमीटर्स. ओके, टाइम ले लेते हैं आपका, इजी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 5 आवर ले लेते हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. ठीक है, आपको स्पीड निकाला. एस मीन स्पीड गाइस, वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. नाउ फाइंड आउट एंड टेल मी द आंसर. आई एम स्टिल वेटिंग गाइस. मैं आपका चैट बॉक्स देख सकती हूँ, सो आप जरूर 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 मुझे आंसर्स बताएं. आई एम जस्ट सीइंग द आंसर हियर. मैं आपका आंसर देख सकती हूँ यहाँ पे. प्लीज गाइस, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट. ओके ओके ओके, so have you done guys? Have you done? So can I do it? चलो मैं करती हूँ. so यहाँ से guys अगर distance is equal to speed into time है तो यहाँ से speed हो जाएगा हमारा distance upon time. so distance अगर हमारा 20 है और time हमारा 5 है, so हमारा आंसर कितना आ जाता है? 4 किलोमीटर पर आवर. so ये हमारा आ गया है speed. is this clear? Is this clear guys? सबको क्लियर है? सो जिन जिन का भी आंसर 4 किलोमीटर पर आया है गाइस, दैट्स ग्रेट. लव यू गाइस, दैट्स ग्रेट. ओके ओके ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड? शैल आई रब दिस? ओके, आई एम जस्ट रबिंग इट अगेन. लेट्स डू. नाउ गाइस, आपके एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, एक चीज ध्यान रख लेना. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डिफिकल्ट होगा. ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपको डिस्टेंस जो है वो आपको दे रखा हो 200 किलोमीटर दिया हो, ठीक है, आपको स्पीड दी हो, ठीक है, यू कैन से स्पीड मान लो आप 40 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम गाइस. इस केस में आपको टाइम निकालना है. नाउ जस्ट डू इट. आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू.
इट्स योर टर्न गाइस, इट्स योर टर्न टू सॉल्व इट। गाइस, आप सबको एक चीज लर्न करनी है कि आपको स्पीड की जो यूनिट है या फिर वो स्पीड की जो यूनिट है गाइस, वो या फिर आपकी मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी, इन दोनों में से ही एक होगी। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? और आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर? Okay, 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 okay. If this is clear to all of you, then it's really good. बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको ये क्लियर हो गया है। ओके 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 गाइस, सो आपको क्या करना है यहाँ पे गाइस, यहाँ पे डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ है, स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि द यूनिट शुड बी सेम। अगर आपका डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम आपका आर में होना चाहिए और स्पीड आपका किलोमीटर पर आर में होना चाहिए। यू हैव टू लर्न इट। अगर डिस्टेंस आपका मीटर में है तो टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए और आपका स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। जस्ट लर्न इट नाउ, अभी के अभी लर्न कर लो ये चीज। बट अगर वो नहीं है देन इन दैट केस गाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। सो यू हैव टू ऑप्शन, आप या फिर किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड को आप चेंज कर दो किलोमीटर पर आवर में। तो शायद मेरे हिसाब से किलोमीटर को चेंज करना मीटर में ज्यादा इजी रहेगा। तो आपको बस यूनिट सेम बनानी है। देखो 1 किलोमीटर में है तो आपको यहाँ पे ये क्या है, स्पीड, स्पीड को किस में बनाना पड़ेगा आपको, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, और मीटर पर सेकंड को तो उससे उसमें आपको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। सो आपके पास ऑप्शन दो दो है, तो क्यों ना आप किलोमीटर को ही मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि ये भी तो ऑप्शन है ना। सो आई एम जस्ट रबिंग इट गाइस, ओके नाउ जस्ट लुक एट हियर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके लेट्स सॉल्व इट। ओके 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 लुक एट हियर। सो मैंने डिस्टेंस को क्या किया, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो मैंने क्या किया, 200 को मैंने मीटर में चेंज करने के लिए, ये बड़ा ये छोटा है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हमेशा इंटू करते हैं। तो 1000 से इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस मच मीटर। 2 लाख मीटर जो है वो डिस्टेंस आ गया। स्पीड ऑलरेडी है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस कितना है 2 लाख और हमारा स्पीड कितना है 40, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो आपका आ गया है, योर आंसर इज 5000 seconds। ये आंसर आ गया है गाइस। इज दिस क्लियर टू ऑल, इज दिस क्लियर? और स्टिल यू आर हैविंग डाउट, still if you are having any doubt guys you can ask, so you got the answer here। आप पूछ सकते हो, आप अपना जो भी क्वेरी है आप यहाँ पे अपना चैट बॉक्स में यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। ओके 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 गाइस, दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट। सो आई एम गोइंग टू रब इट अगेन। मैं आपको जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस प्रैक्टिस के लिए। आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, आपको उन क्वेश्चंस को करना है एंड आपको मुझे फिर ये सारे आंसर्स बताने हैं। यू हैव टू टेल मी ऑल द आंसर्स, ठीक है, वन बाय वन। नाउ लुक एट हियर गाइस, आपको एक जो चीज है जो आपको सीखनी है, दैट इज अगर आपको किलोमीटर पर आवर को अगर आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, तब आपको क्या करना है। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तब आपको क्या करना है, किससे इंटू करना है। यू हैव टू डू द चेंज हियर। अगर आपको चेंज करना है तो आप कैसे करोगे। सो गाइस, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर आपको चेंज करना है तो लुक एट हियर, किलोमीटर को मीटर में, तो किलोमीटर को, ठीक है, आर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, सो आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, देखो किलो
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? टेल मी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 गाइस। तो ये आ गया 1000। ठीक है, और उसके बाद आर को करना है सेकंड में चेंज। तो आर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करोगे आप? ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे ना, लेकिन किससे? यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन है, जो भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है इससे। तो 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं गाइस? 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, दैट इज 3600 सेकेंड्स होते हैं। याद रखना। सो जस्ट राइट इट 3600। आप इसे कैंसिल कर दो। इसे यू कैन 2 5 10, 2 1 2, 2 8 16। सो गाइस, क्या आपने सीखा? व्हाट यू हैव लर्नड हियर? सिमिलर वे में अगर आपको सॉरी, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको सेम करना है। ऊपर आप कर दोगे, जैसे कि मीटर पर सेकंड को चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर को तो डिवाइड करना होता है। तो अगेन आपको सीधे क्या करना है? 3600 अपॉन 1000 करना है। तो ये जीरो कट गया, तो वही चीज आपकी आ गई 18/5 गाइस। सो इन सब से क्या पता चला आपका? व्हाट यू हैव लर्न हियर? क्या लर्न किया आपने? आई एम गोइंग टू राइट इट हियर। मैं यहाँ बॉक्स में लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको इंटू करना पड़ेगा 5/18 से। ठीक है, बट अगर आपको मीटर पर सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको इंटू करना पड़ेगा 18/5 से। आपको ये चीज लर्न करनी है गाइस, यू हैव टू लर्न दिस कि किलोमीटर पर आवर को जब आपको चेंज करना होगा, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन, ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इट्स किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को जब आप चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में किसी भी क्वेश्चन में, तो सीधे आपको 5/18 से, डी शॉर्टकट है आपका। और जब मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हो, तो सीधे 18/5 से आप इंटू कर देना। ठीक है, ये गाइस क्या है? ये आपका शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आपको आप 3600 नहीं देखना, 1000 नहीं देखना, सिंपली आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा गाइस, जब तक कि आप इस पे, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल नहीं करोगे, यू हैव टू डू। ठीक है, इट्स योर, वेट, 5/18 से और मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये बॉक्स बना लिया हमने। चलो, अब सपोज करो गाइस, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आपको करना है चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। तो आपको सीधे क्या करना है? किलोमीटर पर आवर को करना है मीटर पर सेकेंड में, तो सीधे इंटू किसे करना है? ठीक है, 18 को किससे इंटू कर देना है? 5/18 से। देखो कितना इजी है। तो आपको कुछ बताना ही नहीं था, सीधे आ गया आंसर। आंसर, यू गाइस, यू गॉट द आंसर हियर। यू गॉट द आंसर, हो गया, ये सॉल्व हो चुका है। इज दिस क्लियर? सिमिलरली गाइस, अगर यहाँ पे आपको सपोज कीजिए 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है आपको किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, सो यहाँ पे 10 को किससे इंटू कर देंगे? 18/5 से। तो 5 1 5, 5 2 10, 18 2 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो अगर एग्जाम में आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आएगा मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से इंटू करना है। और अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करने के लिए आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 18/5 से इंटू करना है। इज दिस क्लियर? Okay, guys, that's great. That's great. Now, guys, let's the comparison of an unknown quantity with known fixed quantities term as measurement. Measurement क्या होता है guys? Measurement basically आपका जो भी fixed quantity है उसके साथ हम जब unknown quantity को रखते हैं
उससे जब हम कोई भी कुछ भी नापते हैं, दैट इज एक्चुअली मेजरमेंट. इट इज बेसिकली ऑफ टू थिंग्स, दो थिंग्स. देयर आर टू थिंग्स. यूनिट जो कि फिक्स्ड क्वांटिटी है. सपोज कीजिए 4 मीटर, तो ये जो है गाइस, दिस इज योर फिक्स्ड क्वांटिटी. ठीक है, ये चेंज नहीं होगा, मीटर का मीटर ही रहेगा. बट हाँ, ये 4 चेंज हो सकता है. दिस इज योर, दिस इज योर नंबर ऑफ यूनिट्स गाइस. या फिर आप कह सकते हो कि इट्स अननोन क्वांटिटी. अननोन जो कि नहीं पता है, या फिर जो चेंज होता रहता है. सो बेसिकली जो आपका मेजरमेंट होता है वो दो चीज को मिला के बनता है, एक यूनिट और जो कि फिक्स होता है, और एक नंबर, दैट द नंबर ऑफ द यूनिट. इज दिस क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है. डू यू नो वन थिंग? एशियन टाइम की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो पुराने जमाने में लोग कैसे यूज करते थे, कैसे मेजरमेंट करते थे गाइस? फुट से, पैरों से, रोप को यूज करके, हैंड स्पैम से, ठीक है, हाथ के पंजों से, आर्म लेंथ से, इस लेंथ से यूज करते थे गाइस. क्योंकि उस टाइम देर वर नो एनी फैसिलिटी, और कोई भी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कुछ करने के लिए. बट गाइस, अब चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है. नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड. नाउ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम अब एक्यूरेट ले सकते हैं मेजरमेंट. एशियन टाइम में गाइस, वी या वी वर डूइंग दैट. हम एशियन टाइम में इंस्ट्रूमेंट का यूज करते थे, बट वो उतने परफेक्ट वे में नहीं हो पाता था, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता था. बट गाइस, यहाँ पे हम मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं. मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हमें एक्यूरेट लेंथ देती है. Is this clear, guys? Now next is guys, types of motion. So motion जो है वो basically तीन तरीके की होते हैं. That we will do in next session. आज के लिए हमने एशियंट और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया है. ओके, हैव यू गॉट इट गाइस? सो जरूर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में. आपके साथ बहुत मजा आया है guys. Have you understood till here? Thank you so much guys for attending my class. Love you guys. Love you so much.